Good evening, dear students. In some of our previous lectures, we have studied uniform motion and uniformly accelerated motion. Okay. For the better understanding of these situations, today I am taking some of the situations from uniform motion. Let's enjoy analyzing those situations. The first situation is as given by some of the students. 4 particles A, B, C and D are situated at the corners of a square ABCD of side A, means side length is A, at t is equal to 0. Each of the particles moves with constant speed v. Every particle is moving with constant speed v in such a way that A always has its velocity along B, B along BC, C along CD and D along DA. At what time will these particles meet each other? Okay, now read statement again. सबसे पहला काम क्या करना है स्टेटमेंट रीड करते हुए, आप एक डायग्राम क्रिएट करो, ठीक है, जो कि सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करे, ऑलराइट, सिचुएशन को डिफाइन करे. This diagram will definitely be helping you to analyze the situation in a better way. Okay? And will definitely be, helping you to understand the things in. Okay? So, just try to create the diagram. Okay? Let's go ahead with. As given, 4 particles A, B, C, D are situated at the corners of a square. Side of this square is A. This. Fine. And the velocity of A, B, C and D are same and is V. Fine. ABCD, they moves in such a way that A has its velocity always along AB. When at t is equal to 0 की बात करते हैं, चलो, A has velocity along B, मतलब A is moving towards B, इधर. B always has velocity towards C, मतलब B कुछ इधर जाएगा. C has velocity towards D. D has velocity towards A. Hope thing is clear. Velocity is V. Fine. अब ध्यान देने वाली जो बात है, आफ्टर यूनिट टाइम सपोज A जो है वो यहां आ गया, A का शिफ्टिंग यहां पे हो गया. अब क्योंकि वेलोसिटी सेम है, इफ A is from here till here, that is moving this much distance, B to new location after the same time will be traveling the same length. Okay, C to next location taking same time, जितना A से A तक लगा, B to B का जो नया लोकेशन C2, मतलब सेम टाइम में बात कर रहे हैं. C उतने ही टाइम में यहां पहुंच जाएगा, D उतने ही टाइम में यहां पहुंच जाएगा. ओके, नाउ A इज नॉट दिस A, हियर वी हैव A का शिफ्टिंग होके वो यहां पे आ गया, B शिफ्ट होके यहां पे आ गया, C शिफ्ट होके किसी नेक्स्ट इंस्टेंट पे यहां आ गया और D शिफ्ट होके यहां पे आ गया.
अब जो हमारा ABCD स्क्वायर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. A here, D here. New location of A, new location of B. This is B, new B, this is new C. So line joining BC will be this. C new, D new. Line joining C and D will be this. Hope the thing is clear. Okay, now what I was told initially, A moving with velocity V and has its velocity always along AB. तो अब जो मूवमेंट होगा, जो वेलोसिटी होगा A का B की तरफ, AB अब यहां पे है, तो वेलोसिटी विल बी दिस वे. B always have velocity along C, along this line. C always will be having velocity along towards D, along this line. D always has the velocity towards A, along line DA. Mean the new thing will be, new points, new locations will be A. वेलोसिटी V के साथ इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा. मान लिया न्यू लोकेशन A यहां आ गया. ओके, यूनिट टाइम में B का न्यू लोकेशन, B इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, मान लिया यहां पे आ गया. C इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा टुवर्ड्स D, यहां आ गया मान लिया. D इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, मान लिया सेम टाइम में वो यहां पहुंच गया. नाउ और A B C D are, this is A, this is B, and this is C, and this is D. A moves towards B and B towards C, C towards D, and D towards A always. Now this is new A, this is new B, so A now will be moving towards B, mean along this line. B will be moving towards C, mean along this line. Along this line it will be moving. C along D, it will be moving along this line, and D along A will be moving along this line. Okay, now A moving along line AB, after some time it will reach here. B, C along this line in the same time. C, D in the same time. Okay, so new ABCD are with you now. तो अब फिर वही A moving towards B, mean A, B. A is moving along this line. B moving towards C, C moving towards D, new D, D moving towards A. क्योंकि सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो ये ABCD जो होगा ये हमेशा स्क्वायर ही रहेगा. ठीक है, और चलते चलते अगर हम सिचुएशन एनालाइज करें, अगर ये दोनों इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल यहां पे है सपोज करो, ठीक है, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स एट O, तो ये पार्टिकल हमारा यहां से चलेगा और इस तरह का पाथ ट्रेवल करते करते, इस तरह का पाथ ट्रेवल करते 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 विल फाइनली रीच O लाइक दिस. ओके, A ये तो हमारा D था. A विल रीच O समथिंग लाइक दिस, इस तरह से ये घूमते घूमते आप स्क्वायर बनाते जाओ, स्क्वायर छोटा होता जाएगा और ये जो फाइनली लोकेशंस हैं मार्क करते चले जाओ. जॉइन देम. नाउ B विल बी रीचिंग O समथिंग लाइक दिस. होप द थिंग इज क्लियर. ओके, एंड C will be moving, okay, like this. And one thing more, all will be taking from their respective locations, okay, to reach O the same time. Okay, mean they will be meeting at
O. Got it? Now the question is, okay, after how much time they will meet each other? They all will meet together. मतलब हमें फाइंड क्या करना है? A, B, C, D पार्टिकल्स O लोकेशन पे किस टाइम पहुंच जाएंगे? अब साइमल्टेनियसली पहुंचेगी? कितने टाइम के बाद पहुंचेंगे अगर t इज इक्वल टू 0 पे उन्होंने चलना स्टार्ट किया था? थिंक ऑफ द सिचुएशन. नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें यह फाइंड करना है कि पार्टिकल, देखो A, B, C, D चारों पार्टिकल O पे पहुंच गए सेम टाइम पे. t इज इक्वल टू 0 पे चले थे, तो हमें वो टाइम फाइंड करना है जब वो यहां पे पहुंचे. लेट द टाइम इज t. ओके, जो सिचुएशन मुझे गिवन है वो ये है कि A मूविंग विद वेलोसिटी B, A मूविंग विद वेलोसिटी V टुवर्ड्स B, सेम वे B मूविंग टुवर्ड्स C विद वेलोसिटी V, सेम C टुवर्ड्स D एंड D टुवर्ड्स E. ठीक है, अब ध्यान देना, मैं A पार्टिकल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूं. ओके, क्योंकि जितना टाइम A को लगेगा उतना ही B, C एंड D को लगेगा. ठीक है, नाउ देखो बेटा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ये अपना वेलोसिटी वेक्टर है, सपोज करो ये हमारा P वेक्टर है. क्लियर? हॉरिजॉन्टल के साथ, इस एक्सिस के साथ मान लिया एंगल बना रहा है थीटा. ओके, तो इस P वेक्टर का इफेक्ट इस वेक्टर के इस डायरेक्शन में कितना होगा? दैट इज P का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा. अभी इतना ही दिमाग में रखना है. क्या बोला मैंने? अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में P है, तो इस एक्सिस के अलोंग जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, उसके अलोंग इस P वेक्टर का इफेक्ट कितना होगा? P cos थीटा. रेस्ट ऑल ये कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, तो इन कंपोनेंट्स की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, विच इज वेक्टर्स. अभी इतना ही दिमाग में रखना है जितना बताया. अब ध्यान देने वाली बात, यहां वेलोसिटी इज v. ठीक है, मुझे टाइम फाइंड करना है. पार्टिकल ने A से O तक लिया. A से O तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? डोंट गो टू एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट पे चल रहे हैं. ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात जो है, डिस्प्लेसमेंट ठीक बाय वेलोसिटी. यस, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं. जब आप ये रिलेशन यूज कर रहे हो तो वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए. ठीक है, तो मैं इस v का बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम टेकिंग दिस डिस्प्लेसमेंट इनटू अकाउंट. A से O तक जाना है भाई, कितनी वेलोसिटी से? मैं इस वेलोसिटी का इफेक्ट इस एक्सिस के अलोंग ले लूंगा. तो अगर वेलोसिटी v इस एक्सिस के अलोंग है, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट कितना होगा? v cos 45 डिग्री, v cos थीटा. ओके, पॉज करके इसको बार बार पॉज करके समझना हर एक स्टेप को. ठीक है, अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन वाला आ गया, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आ गई, तो टाइम आ जाएगा कि नहीं? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट इज कितना लेंथ है? इफ साइड इज A, ओके, डायगोनल लेंथ विल बी A square plus A square under root, that is root 2A. Fine, but the displacement is not the complete diagonal, that is half diagonal by 2. So this is A by root 2. A by root 2. It's done. So displacement we have got, that is A by root 2 divide by velocity. Velocity is v cos 45. Okay, now solve this. A by root 2 over v cos 45. V is v, cos 45 is 1 by root 2.
ओके, तो दिस 1/√2 a/√2 1/√2 by v बन जाएगा ये। तो ओवरऑल जो टाइम बनेगा, टाइम विल बी इक्वल टू a/v। आफ्टर दिस मच टाइम all the 4 particles will reach O। ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी यूज कर लिया, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना, दिस इज द सिचुएशन, एक्चुअल सिनेरियो। पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिस्टेंस आई हैव टेकन डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट और उसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, अब यहां वेलोसिटी v था तो यहां वाला वेलोसिटी मैंने ले लिया, ठीक है, और उस वेलोसिटी को लेके अपना काम चल गया। ओके, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी बोथ इन सेम डायरेक्शन, फाइन। तो वी हैव कैलकुलेटेड टाइम एंड द टाइम विच वी हैव गॉट, दैट इज a/v। होप यू हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन।